Hello everyone, how are you all? So all the CBSE students, your date sheet has already been assigned, not the date sheet, the date from which the exams are going to be started. Yes, it is 26th of April. So around 75 days in hand. Some of you must be very excited that wow, 75 days are there in the hand and now I can relax a little bit. I was too much of stressed and now I have some time in hand for preparation. And some must be thinking, my God, what will happen to the exams or my plans ahead after the board exams. Okay. So let us talk in detail about all of these issues in today's video. I'm going to first speak about, what should be your next strategy, how you are going to prepare for, a board exam and what should be done for the exams which you are going to take after the board exams, means your degrees or your professional courses which you were thinking to or you were planning to do. Okay, so if you have not yet subscribed my channel, you have to subscribe it and like and share. So let us discuss, students, around 75 days, and I will remind you that ISC students also can refer to this videos because very soon ISC board will also come up with its date sheet, and if not date sheet, at least with the date of the examination, probable date from which date exams are going to be started. And as I assume, or many teachers are guessing, that it will be somewhere around the same time as April only, from the date CBSE is starting its own exam. The ISC board should also be following the same kind of date. So what should be the strategy now? See, first of all, it is all the game of mindset now. The students who will go in the comfort zone and they will relax for 10-15 days and they will go into the celebration mode, they have lost it already. Yeah, I may sound harsh, but they have already lost it, because the smart students will plan today itself. Actually, the news had come yesterday. So they will plan today itself, or they must have planned already that what should be the next step and how they should strategize themselves for the board exams. And after board, which colleges they were thinking of taking admission, they must have already zeroed down that what colleges they want to take admission, and accordingly they will make their strategies. Okay, if you have not yet done that, you have time now, you should start doing it. I'm telling, roughly 75 days are there in your hand and 75 days are not less, so it's a bonus thing for you. Now I'll tell you some important dates also to keep the pen and paper in your hand. If you, have not yet taken, please bring your paper and pen along with you so that you can, note down all the dates which I'm going to discuss in this video. मैंने सारा homework किया है, मेरा सारा part यहाँ पर रखा हुआ है, whatever I'm going to discuss, okay, with you, dates के साथ मैंने यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, that I'll be discussing with you. So first of all, what should be the strategy for the board exam? See, board exams are going to happen from 26th of April. मतलब सारे स्टेट्स के जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे अराउंड 15th of March, फाइनल वाइवा एग्जाम्स एंड फॉर द साइंस स्ट्रीम एंड फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम्स, वो सब कुछ हो जाएगा. उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे. आईएससी का भी कुछ इसी तरह रहेगा. आईएससी का हालांकि बहुत सारे स्कूल्स का ऑलरेडी फाइनल वाइवा हो चुका है, प्रोजेक्ट वर्क इज ऑलरेडी डन, सो यू आर फ्री फ्रॉम दैट पार्ट. नाउ pre-board exams, some schools are conducting pre-board exams, some are going to conduct, but it will be definitely there, one prelim will be there in February month. So February month आपका already packed है, आपको prelims के लिए preparation करना है, आप कर ही रहे होंगे, कुछ लोगों के prelims तो बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं. You are going to write your prelims exams. So what should be done? So for your day, if you divide your day for 7 to 8 hours of your day should go for this study of class 12. Yes, 7 to 8 hours of your class of your day should go for the study of class 12 only. Remaining 2-3 hours, depending what is your schedule, 2-3 hours should go for the preparation of other exams. You must have already thought that what kind of colleges you want to secure your seat in for your degree courses or any professional courses if you are preparing. You must have thought that these courses I might prepare, I might take admission after my 12th board examination. So now this is the right time that you should start preparing it. Normally जब पूरे साल का एक ही एग्जाम होता था, ऐसे टर्म वाइज एग्जाम नहीं होते, तो हम बच्चों को ये सजेस्ट करते थे कि पूरा टर्म खत्म हो जाने तो, मतलब फाइनल एग्जाम हो जाने तो बोर्ड के, which used to be
फेब्रुवरी एंड तक खत्म हो जाते थे, या मार्च फर्स्ट वीक में, तो आपको 2 महीने का टाइम मिल जाता था, मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स मई में होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होएगा, बिकॉज एग्जाम्स ओनली विल गेट ओवर इन अप्रैल एंड तक या मई फर्स्ट वीक तक खत्म होंगे। ऑब्वियसली जब डेट शीट आएगी तो सीबीएसई एंड आईएससी बोथ द बोर्ड्स विल अकोमोडेट ऑल दैट। जिस जिस एग्जाम्स की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है वो डेट शीट कुछ ऐसे अरेंज करेंगे कि क्लैशेस ना हो जाए, बट यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड वेल, बिकॉज अगर कोई भी आपका एग्जाम जस्ट विद इन 1 वीक आ जाता है ऑफ योर बोर्ड एग्जाम के बाद ही, 1 वीक के अंदर आपकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन डेफिनेटली नहीं होगी। तो अभी से आपको टाइम एलोकेट करना शुरू करना चाहिए। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको कोचिंग क्लास अभी तक ज्वाइन करने के बारे में डायलेमा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दिस इज द राइट टाइम। There are a lot of institutes who are announcing for the coaching classes. You can inquire with them and join some of the classes if it is not consuming too much of time. Yeah, this should be first priority, that it should not consume too much of your time, because 12th board is equally important. Okay, so ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपका 12th बोर्ड सफर कर जाए। मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर डे शुड गो फॉर 12th एग्जाम्स, 12th एग्जाम प्रिपरेशन, एंड 1 to 2 hours or 3 hours, इतना ही बस, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए for preparation of the competitive exams. Okay, so let me tell you a few dates. I will write it down and I would want all of you to नोट इट डाउन। ओके, अगर आप सीरियसली कुछ सोच रहे हैं करने का तो ये सारी डेट्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। लेट मी राइट डाउन फ्यू डेट्स ऑफ सर्टेन एग्जाम्स विच यू कैन डिसाइड टू डू। जैसे कि अगर मैं डीयू के बारे में बोलूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला हुआ है, ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफी टाइम पहले अनाउंस कर चुका है दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम विद इन 30 days of the board exam, ending of the board exam. So whenever the board exam gets over within 30 days, Delhi University and Associate College, they are going to conduct the exams. Okay, so you will have those 30 days time period, but ऐसा जरूरी नहीं कि 30 days के बाद करेगा, within 30 days, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है, 15 दिन बाद भी हो सकता है। तो you have to prepare for it right now only. So आप किसी भी अच्छे कॉलेज का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। Then दो स्टूडेंट्स जो भी बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे थे, IIM, 2 IIM है रोहतक में, एक तो आपका है IIM और दूसरा जो है इंदौर, दोनों IIM। यहाँ पर आपका बैचलर्स डिग्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 years का, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर अभी तक आपको इसके बारे में पता नहीं है तो प्लीज स्टार्ट डूइंग योर रिसर्च ऑन दिस। तो रोहतक ने ऑलरेडी जो है डेट अपनी अनाउंस कर चुकी है एंड दिस डेट इज 21st of May। ओके, सो 21st of May ने रोहतक के लिए, रोहतक IIM ने ऑलरेडी डेट अनाउंस करी है। इंदौर IIM की डेट भी कुछ इसी के आसपास होनी चाहिए, अभी तक उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मे दे हैव already told a tentative date will be there। हो सकता है कि रोहतक के आसपास से कुछ रखे। तो ये IIM की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं CA फाउंडेशन, ओके, जो बच्चे सोच रहे हैं CA फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए, CA फाउंडेशन का रिजल्ट टुडे 10th of February को CA फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है एंड 21st of February से एग्जाम के फॉर्म फिल करने का डेट अनाउंस हो चुका है, विच इज आई थिंक टिल 3rd of March। 21st of February से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम फॉर्म फिल करने का डेट, और 23rd of May को एग्जाम है। 23rd of May से लेकर 29th of May के बीच में CA फाउंडेशन के एग्जाम होने वाले। तो अगेन अगर आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होता है 26 से स्टार्ट होकर, जब भी डेट शीट आती है पता चलता है, अगर फर्स्ट वीक ऑफ मे में खत्म होता है तो आपके पास हार्डली एनी टाइम विल बी लेफ्ट कि उस एग्जाम खत्म होने के बाद आप प्रिपरेशन करेंगे CA फाउंडेशन के लिए। फिर आपको नवंबर का अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा, आपका मई का अटेम्प्ट हाथ से निकल जाएगा। सो इफ यू आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ गिविंग CA फाउंडेशन इन मे, यू हैव टू प्रिपेयर इट नाउ ओनली। सेम इज विद IIM एंड DU के एग्जाम्स के लिए भी वैसे ही, आपके पास दूसरा मौका नहीं है। CA फाउंडेशन एंड CS एग्जाम्स के लिए तो फिर भी आपके पास थोड़ा मौका मिलेगा कि आप बाद में प्रिपेयर करके दे पाएंगे, लेकिन व्हाई शुड यू वेस्ट द टाइम व्हेन यू हैव इनफ टाइम राइट नाउ इन हैंड। ओके, देन इसके बाद अगर बात करूं मैं क्लैट के एग्जाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस है। क्लैट के एग्जाम की अगर मैं डेट की बात करूं तो क्लैट का एग्जाम May 8 को ऑलरेडी अनाउंस है। ठीक है, अगेन एज आई टोल्ड यू कि जब भी डेट शीट आएगी तो इन एग्जाम्स की डेट पे आपके बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। तो 8th of May को ऑलरेडी क्लैट के एग्जाम की डेट अनाउंस है। आपने ऑलरेडी कोचिंग्स ज्वाइन कर रखी होंगी, आपको प्रिपरेशन के ऊपर अब ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा टाइम नहीं मिलने वाला है। साइमल्टेनियसली यू विल हैव टू डू इट। ओके, सो क्लैट एग्जाम
preparation you will have to do simultaneously. If you are talking about Narsi Monji ने भी already declare कर दिया है May 10th से लेकर के 20th के बीच में उनके एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है. So this is the whole scenario. फिर all all the important exams you may be thinking some other exams also. तो आप जिस भी एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा May 1st week तक ही उसकी डेट्स है. अगर थोड़ा कोई रूमर्स फैला रहा है कि ये एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाएगी क्योंकि डेट के ये वाले एग्जाम्स जो बोर्ड के एग्जाम है इतना लेट हो गए हैं, अप्रैल में हो गए, my humble request is that you do not pay any attention to all these kind of rumors because हमें नहीं पता कि ये एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है. तो आप ऐसा कोई भी गलत assumption के साथ ना चलिए कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे एंड लेटर ऑन मुझे टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए और जून में जा सकते हैं एग्जाम्स. ऐसा कुछ भी मत सोचिए. अभी हाल फिलहाल के लिए यही सोच के रखिए that these exams are going to be on the set date and you have to prepare according to this. आपके पास जितना भी एडिशनल टाइम मिल गया है उसके लिए प्रिपरेशन करिए एंड देन इट विल बी गेम चेंजर. अगर अभी आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्लो डाउन कर देते हैं ये सोच के कि बाद में देख लेंगे, तब तो गेम इज आउट ऑफ योर हैंड, चला गया आपके हाथ में से. ये सारा गेम खत्म हो गया है. देन यू विल हैव टू बी डिसअपॉइंटेड एंड हो सकता है कि आप जिस भी अच्छे कॉलेज में सीट रिजर्व करने की कोशिश कर रहे थे वहां आपको सीट ना मिल पाए, ठीक है. सो उसके लिए आई वुड सजेस्ट दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल एंड मेक यूज ऑफ दिस टाइम विच यू हैव गॉट, एडिशनल टाइम यू हैव गॉट. तो इन 75 डेज के लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग करिए. प्लानिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस आपके पास शेयर कर दिए हैं. एक अकाउंट्स प्लानिंग, how to revise accountancy in 15 days, कॉमर्स कर दिया है and I would be coming कल ही मैं लेकर आने वाली वीडियो इकोनॉमिक्स के लिए कैसे आप रिवीजन करेंगे, ठीक है. तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्लीज रिवीजन का जो प्लान है अपने आप से तैयार रखिए. अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं, आई हैड सजेस्टेड अर्लियर आल्सो, प्लीज किसी की हेल्प लीजिए और ये प्लान्स जो हैं उनको रेडी रखिए. अगर प्लान रेडी होगा तो आप बहुत अच्छे से इस टाइम का यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डिग्री कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे. लेकिन अगर अभी आपको ऐसा लगा कि अरे वाह मस्ती करने का थोड़ा टाइम मिल गया है, तो फिर my friend it is very difficult for you to get something what you want. If you are really serious for your goals, if you want to achieve them, please be serious and do not go into the celebration mode and keep preparing. Okay, ऐसा सोचिए कि डेट शीट कुछ चेंज ही नहीं हुई है, कोई एग्जाम की डेट अनाउंस ही नहीं हुई है और मुझे उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है जैसे कि मेरे एग्जाम अभी थोड़े दिन में ही होने वाले हैं, ठीक है. So I hope this would help you. All the best for all your preparation and do not forget to subscribe the channel. And if you like and you think that this video is going to add some value to your life, please do not forget to share it with others. Have a good day. Bye.